Good evening, everyone. I'm Srishti Singh, and on behalf of Transparency and Accountability Society, I extend a warm welcome to our esteemed guests and our wonderful audience. As you know, Transparency and Accountability Society has taken this initiative of organizing a 2-day symposium on the recently promulgated agricultural ordinances by the Honorable President of India. Today is the second day of the symposium, and we had a very informative session yesterday, which we intend to continue today as well. Now, it doesn't need much elaboration that agriculture plays a key role in India's economy, both from the point of view of employment generation as well as its share in GDP. While agriculture contributes about 15% to the country's GDP, it also sustains more than 600 million Indians in terms of employment. Renewed and, in fact, much more enthusiastic focus on farmers, agriculture becomes all the more important as India, like rest of the world, looks at reviving its economy left ravaged by ongoing COVID-19 crisis. In India's revival, agricultural sector is undoubtedly expected to play a crucial role. Besides COVID-19 crisis, even in terms of food demand, never before has India faced such a huge challenge to meet its food demand. But what remains ironical and painful is that despite such crucial sector, farmers continue to struggle. Newspapers echoing the crisis in Indian agriculture continue to report daily incidents of suicides in various parts of the country, attributing it sometimes to mounting deaths, sometimes to crop failure, social and psychological factors, etc., etc. To address these growing concerns, the Union Budget 2020 brought several commendable green shoots of recovery for the agriculture sector, including the government's 16-point action plan to boost agriculture towards the goal of doubling farmers' income by 2022. However, there is much that needs to be done, and a more holistic approach will be required to boost up the agriculture sector. And in a step towards achieving this, the Indian government has promulgated the following ordinances with the aim of giving a boost to rural India and farmers engaged in agriculture and allied activities. The ordinances are the Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services. These are among the most crucial developments in 2020 and hence the need for an informed and detailed discussion. With an aim to start dialogue around these ordinances and how to further the causes of farmers in India, this symposium has been organized, and we are extremely fortunate to have with us some distinguished personalities who will help all of us gain understanding of these ordinances and difficulties being faced by the farmers on the ground level. Today we have with us Shri Brijendra Singh, MP, Hisar, Haryana, an alumnus of St. Stephen's, Delhi, King's College, London. He is a former bureaucrat who has served state of Haryana for 21 years before joining politics. He comes from a family which has, from generation to generation, tirelessly worked for the upliftment of farmers. So it's a privilege to have him here when our discussion concerns our farmers. We are also delighted to welcome Shri Arjun Chautala, National In Charge, INLD Student Organization. He is a young, energetic leader who has been tirelessly and consistently raising issues related to farmers, their welfare and progress. We also want to extend a warm welcome to Shri Rajveer Manav, who is currently serving as Assistant Commissioner of Police, Delhi, and despite his hectic work schedule, remains committed to improving the living conditions of farmers, help them with education and other opportunities being denied to them. He is also the founding member of Jan Seva Foundation, which is committed in pursuing the above mentioned goals. Sir, it's a delight to have all of you here, and we look forward to an interesting and enriching discussion. Thank you. Over to you, Devansh. Thank you so much, Srishti, for your wonderful introduction. I welcome all our guests to this program once again. Today, I want to inform you this is the second day
of the National Symposium on Agricultural Ordinances 2020. And we have with us today some eminent personalities who have played a vital role in uplifting the lives of farmers in this country. We have policymakers with us, we have young leaders, and we have people who think about these issues where the media has completely discarded these issues, where the media has failed to highlight these national importance. This is where we come in, and this is where we have tried to organize this symposium so as to bring the issues of national importance to the light for the general public. I welcome esteemed Member of Parliament, Shri Brijinder Singh Ji. It's our pleasure to have you with us here today, sir. You have such a busy schedule, but you have agreed and consented to be part of the program. This shows your commitment towards listening to farmers. So I welcome you again, sir. I welcome Shri Arjun Singh Chautala Ji, who's a young dynamic leader who's fighting vociferously for the rights of the farmers, and he has been consistently highlighting these issues. I welcome Shri Arjun Singh Chautala Ji. I welcome Shri Rajbir Manav Ji also, who's the president of Jan Seva Foundation. I also welcome today Shri Nripender Singh Ji, who has been ex-MLA from the state of Haryana, and he is also an advocate. He has participated in the conference yesterday, and he brought before us some very crucial issues and questions, and he answered it for the students also. So I welcome all our guests today. I want to tell all our guests that today we are joined in by law students all across India. Some of them, the selected few, have joined us on the Zoom meet. And apart from that, many of the students and the public are watching our symposium on our social media platform. So I welcome all of you. And I would like to start with Shri Brijinder Singh Ji, and I would request Shri Singh to please switch on his video feed. And our first question is for Mr. He's a person of great skills. He's a person of great experience who's just not from a political family, but he has also served the executive of this country. And after that, he has forayed into politics. And he's also an academician. He's a student of public policy. So today, my first question is to Shri Brijinder Singh Ji. Mr. Singh, I would like to ask you, sir, that these ordinances are touted to be a game changer for the farmers of this country. And it is said that these ordinances are going to make the farmers of this country self-sufficient. They are going to make the farmers of this country Atmanirbhar. So I would like to ask you, sir, how these ordinances are going to play a vital role in actually making the farmers self-sufficient. Brijinder Singh, sir, please answer it for us, for our audience, sir. Yeah, thank you, Vedansh, and thank you, Shrishti, and all the viewers and guests on the seminar. Thank you for affording me the privilege of speaking first. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. So first of all, let me say that the real breakthrough in agriculture in India happened with the onset of Green Revolution in the mid and the late 60s. And the country has been safe as far as availability of food and fodder is concerned. These last 50 odd years have seen the progression of agriculture from being a self-sustaining enterprise to becoming something for the market, something to feed the country, and it has done its duty admirably. The farmers have acquitted themselves really well. They've fed this country for the last 50 years, but now we have come to a stage where the impact of Green Revolution is plateauing. We still have a growth in agriculture, but and which was again on display in these COVID hit times also. The only sector which grew by 3.4% was agriculture, but that is not the entire picture.
agriculture as an economic activity has become very difficult to sustain. And apart from that, the ecological and the environmental side effects or ill effects, if I may call them, are also coming to the fore now. And whether it's depletion of groundwater in large parts of Haryana, Punjab is concerned, or otherwise also the amount of pesticide and insecticide which is put to get your yield. All those things and their deleterious effects are now coming to the fore. And side by side, all the attempts at diversification so far have not really yielded the desired results. The Green Revolution belt, especially, which is Punjab, Haryana, Western UP, it still is caught up in that paddy wheat cycle. So reforms in agriculture sector were long awaited. People had been anticipating it for a long time. And finally, I must say that some ground has been broken by these three ordinances, primarily two, but the third one concerns the Essential Commodities Act. So these three ordinances put together do mark a new beginning as far as agriculture is concerned. And what it brings on the table for the first time is the loosening of the regulation, the regulatory framework, because agriculture was very tightly controlled and tightly held by a lot of regulatory mechanisms, especially the APMCs, the Agriculture Produce Marketing Committees, and the acts in different states. So that is what largely determined the relationship that the farmer had with the market, and Mandi was the focal point at which it all coalesced. What these acts do is to free up the potential of the markets, of the farmers, and it for the first time earnestly endeavors to allow the farmers to the regime which determined everything. Almost all the produce that was coming to the mandis was going to all the produce that was a surplus which was coming was going to the mandi only, and which essentially meant wheat and paddy was being procured by government for FCI. That was the basic model, and it did serve us well for a long time. It still is serving well. So what these ordinances do is to free up the ground for competition. For it gives a choice to the farmer to sell to whosoever he wants to at a price that he feels is remunerative. And so in that sense, yes, these ordinances do break new ground, and also it for the first time really gives a framework for contract farming also, where the farmer can engage with a sponsor or even a third party and accordingly produce as per the needs of the sponsor or the third party, and he then has access to the farm services from the sponsor. So these are the new things which have come in through these ordinances. People have some concerns with them. I also have a few concerns, but I'm sure with passage of time, and especially when this comes up in the parliament for discussion, a lot of the apprehensions which people have will be addressed, issues will be settled. For example, a lot of people have an apprehension that maybe it's the first step towards getting rid of the MSP regime. I don't know how that image is, how that impression has gained ground, but that's a major concern. And farmers and farmers associations and organizations, I have a right to be fully concerned about it, because it's the farmers' interest at the end of the day which has to be met. There's another concern that these ordinances, maybe they seek to bypass the states and kind of creating a legal structure
which overarches the APMC Act, and so thereby though it seeks to establish one nation, one market, but at some level, people do think that the state's authorities is being eroded, and the source of money, which these mandis were, where the agriculture produce would come for trading, that is being taken away from the government. So I'm sure all these concerns will be addressed by and by, but largely I welcome these ordinances. I welcome them for the simple reason that finally we do have a blueprint of reform in the agriculture sector, structurally speaking. So far, all the things which had come in were only cosmetic in nature. Finally, we have something which can change the very nature of how agricultural produce is dealt with, how it is sold, how it is marketed, how it is processed, and how it reaches the consumer in the end. Thank you. Thank you so much, Singh sir, that you opened the session for us, and you have actually brought about the main points and how this all these ordinances are actually aimed at reforms, and how they are going to be a stepping stone towards making the farmers self-sufficient. You rightly pointed out that there are some concerns, and today we also have with us Shri Arjun Singh Chautala ji. Arjun Singh Chautala sir से मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप सुन रहे थे अभी तक ब्रजेंद्र सिंह सर को, और सर ने कहा कि बहुत अच्छे ऑर्डिनेंसेस हैं, हमारे भी कुछ क्वेश्चन है हम बाद में पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स. सो माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर Arjun Singh Chautala sir, what do you make of all these ordinances, since you are so strongly connected with the farming community? Sir, what do you make of it? आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अर्जुन जी, अर्जुन जी आपके आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं. ओके, यस, सॉरी फॉर दैट. हाँ जी सर. मैं सर Hello? ये पूछ रहा था जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी हमने सिंह सर को सुना और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं, दे आर गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स मच नीडेड फार्मिंग रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री. और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जरूर कोई इश्यूज हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हैं कि जो कि देखे जाने चाहिए, जैसे कि सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप है, और कुछ जो ये एमएसपी की जो प्राइसिंग रेजीम है, तो ये कुछ इश्यूज हैं. ब्रजेंद्र सिंह सर राइटली पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स दैट. तो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? Do you think these ordinances are actually aimed at reforms, or they are aimed at something else? Where a lot of activists in the farming community pointing out towards that these ordinances are actually aimed at taking away the rights of the land from the farmers. तो सर आपका क्या कहना है? What do you make of it? क्योंकि आप इतने strongly connected हैं farming communities के साथ, आप किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बातें आप सुनते रहते हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्ते. एंड जो सबसे आपका पहला क्वेश्चन था, जैसे माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि इट इज अ स्टेपिंग स्टोन. देखिए, स्टेपिंग स्टोन ये तब बनता है जब आप उस फार्मर को अपॉर्चुनिटीज दो कि वो खुद अपनी तरफ से फार्मिंग छोड़ना चाहे. सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ऑर्डिनेंस ये फार्मर्स को पुश कर रहा है फार्मिंग की तरफ से. एंड व्हाट यू रियली नीड इज कि आप उनको एक तरह का लालच दो, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दो कि भाई वो किसान कल को अपने बच्चों को आगे, भाई कोई भी किसान नहीं चाहता कि भाई मेरा बेटा पूरी जिंदगी खेती करता रहे, पूरी जिंदगी धूप में तपता रहे, पूरी जिंदगी कभी सुबह 4 बजे जा रहा है पानी देने के लिए, कभी रात को 3 बजे जा रहा है, कभी कोई टाइम, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई नहीं चाहता. हर किसान चाहता है कि भी उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिख के आगे जॉब करे, आगे खुद अपना काम करे, कमाए, मेहनत करे. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि देश में मंदी है, हमारा देश करंटली रिसेशन में है. तो वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ है किसान के पास कि भी वो जाके और सेक्टर्स के अंदर और फील्ड्स के अंदर जाके वो कहीं पर अपनी प्रोग्रेस करता है. सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली है कि आप जैसे हम ये इन लॉज को हम कई बार जैसे
कनेक्ट करते हैं, जैसे अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे, हम यूरोप के साथ कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा कभी भी उन देशों के बराबर नहीं था. वी वर अ कॉलोनी एंड दे वर द कॉलोनाइजर्स. तो उनके पास ऐसे सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने के लिए पहले से उनके देशों के पास बहुत पैसा था. ठीक है, ब्रिटेन जैसा देश है, फ्रांस जैसा देश है, छोटे छोटे देश है, पर ये इतने रिच कैसे बने? बिकॉज इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा था. और वही सेम चीज आप ये कह सकते हो कि भाई ये कानून अगर कहीं पर इफेक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इफेक्टिव होगा. आज भी जो हमारे देश के ऊपर जो 200 साल का राज हुआ अंग्रेजों का, वी आर स्टिल रीलिंग फ्रॉम दैट. आज भी उन्होंने इंडिया को इस तरीके से डिवाइड करके हमें छोड़ के गए थे कि आज भी सोसाइटीज बहुत ही ज्यादा कास्ट लाइंस पे, रिलीजियस लाइंस पे डिवाइडेड है. और फार्मिंग के अंदर भी जो मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं, वो उनकी बहुत स्मॉल होल्डिंग्स है. जनरली जो फार्मर है वो स्मॉल होल्डिंग्स वाला, वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग करूं, मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम खर्चा. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि भी हमने नए ऑर्डिनेंसेस बनाए हैं जो इस चीज को ठीक करेंगे. गवर्नमेंट ये भी कहेगी, सरकार ये भी कहेगी कि भी जो एपीएमसी है उसके अंदर इश्यूज है, लेकिन उन इश्यूज को ठीक करने के लिए आपने नए एक्ट्स बनाए जिनके अंदर भी इश्यूज है. आपके पास एक प्रॉब्लम है और आप कह रहे हो कि नहीं भाई, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एक नई प्रॉब्लम बना देते हैं. तो अगर यही सारे चेंजेस लाने हैं, अगर यही सारी चीजें आपको करनी है, तो ये चेंजेस आप एपीएमसी के अंदर ले आओ. कहीं पर भी इस एक्ट के अंदर ये नहीं कहा गया कि भाई एमएसपी पे मिलेगा ही मिलेगा. जनरली लोग पॉइंट आउट करेंगे कि भी मंडी के अंदर व्यापारी क्या करते हैं, मिलके एमएसपी पे सामान नहीं खरीदते, वो मिलके कहीं ना कहीं 100-200 रुपए नीचे के भाव को गिरा ही देते हैं. तो यहाँ क्या गारंटी है कि भाई मंडी के बाहर जो फ्री ट्रेडर है, क्या गारंटी है कि भाई वो सारे फ्री ट्रेडर्स मिलके आपका भाव नहीं गिराएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप घर घर जाके आटा बेच के आ रहे हो, आप घर घर जाके गेहूं बेच के आ रहे हो, घर घर जाके आप धान बेच के आ रहे हो, चावल बेच के आ रहे हो. बेचोगे तो आप किनको? राइस मिल्स वालों को बेचोगे, कॉटन मिल्स वालों को बेचोगे, आप बेचोगे क्या कहते हैं जो जिनके बड़े बड़े मिल्स हैं, आप शुगर केन मिल्स वालों को बेचोगे. जो भी आपका प्रोड्यूस है आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचोगे. तो व्हाट इज स्टॉपिंग उन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो सारे मिलके एक मोनोपोली बना के आपका रेट गिरा दे? अगर ये कानून लाना ही है तो एमएसपी को एक मौलिक अधिकार बनाओ, एमएसपी को एक अधिकार बनाओ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाओ, एक लॉ बनाओ. ये गाइडलाइन नहीं कि अगर सरकार ये कहती है कि भी इस एमएसपी पे बिकना चाहिए तो उसको एक कानून बनाया जाए, ताकि किसी भी किसान को अगर उस एमएसपी पे अगर उसकी बिक्री नहीं हो रही तो वो कोर्ट में जा सकता है. जो सबसे पहला ऑर्डिनेंस है जो आपका इसी चीज के बारे में सबसे पहला ऑर्डिनेंस है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस. सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये है कि जो मंडी के अंदर जो आपका बायर है, ही इज अ रजिस्टर्ड बायर. मंडी के अंदर जिनकी भी दुकान है वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी फ्री बायर रजिस्टर्ड नहीं होगा. एंड आई थिंक बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट करा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते. कोर्ट एक एसेंशियल राइट है हर ह्यूमन का, सिर्फ इंडियन का नहीं, दुनिया में किसी भी इंसान का कोर्ट में जाके न्याय लेना उसका हक है. किसी भी डेवलप, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर हर इंसान का ये हक है. लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ आवर किसान्स, जहाँ पर हम कहते हैं, जिस देश के अंदर गाने हैं, मेरी देश की धरती उगले सोना हीरे मोती, तो जो वो इंसान सोना हीरे मोती उस देश की धरती से निकाल रहा है, आज आप उसको कह रहे हो कि नहीं भैया आप कोर्ट भी नहीं जा सकते अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए. और ये सबको पता है कि जो सरकारी जो अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, चाहे वो एसडीएम है चाहे डीसी है, वो सरकार के दबाव में रहते हैं. ठीक है, हम सबसे बड़ा एग्जांपल आप खेमका जी का ले सकते हैं, हरियाणा से ही हैं. वो एक आईएएस अधिकारी थे जिनकी जो जनरली सरकार के दबाव में नहीं आते थे. कितनी ट्रांसफर हुई उनकी, कितनी ज्यादा ट्रांसफर हुई उस इंसान की. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई अधिकारी सरकार की नहीं मानता तो सरकार मेक श्योर करती है कि उस पर वो दबाव डाला जाए कि वो उनका कहना माने. तो व्हाट इज स्टॉपिंग? क्योंकि सरकार जो है सबसे ज्यादा चंदा ये लेती किनसे है? बड़े व्यापारी से. एसेंशियली इस एक्ट की वजह से आप केवल किसान को खत्म नहीं करते, आप साथ ही साथ जो छोटा व्यापारी है आप उसको खत्म कर रहे हो. सबसे बड़ी चीज ये देखो, अगर डायरेक्ट लोग खरीदने लग जाएंगे, अगर डायरेक्ट इतना हो जाएगा तो सबसे पहले मंडियां बंद होंगी. और मंडी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो छोटे व्यापारी, जो शहर के लोग हैं, जो उसी मंडियों से कई मंडियों से कितने शहरों के अंदर तो क्या कहते हैं आपका पैसा चलता है.
एक तरह से आम आदमी को जब पैसों की जरूरत होती है, अगर उसको बैंक से ना मिल सके, जल्दी होती है, तो वो मंडी में जाके व्यापारी से लेके आता है। वो मंडियां बंद हो जाएगी, आप एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बंद कर रहे हो। अगर आप चाहते हो तो उसको रेगुलेट करो, उसको बेटर रेगुलेट करो। सबसे जरूरी चीज तो रेगुलेशन है ना। यहाँ पर नए कानून बनाना जरूरी नहीं है। जो आपके पास है उसको सही तरीके से चलाना, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उस कानून का सही तरीके से प्रयोग करना, वो सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए मेरी क्या कहते हैं, हम तो ये मानते हैं कि भी जो ये नए ऑर्डिनेंस आए हैं, इनके अंदर चेंजेस करने की बजाय, इनको कानून बनाने की वजह, इनसे सीख लेके, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आज के दिन किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं। मैं आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में, पीपली में किसान धरने पे बैठे थे कि हम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। अब सबसे बड़ी चीज देखिए, प्रोटेस्ट करना भी तो हमारा एक राइट है, लेकिन वो जो किसान वहां प्रोटेस्ट पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। आप लाठीचार्ज तब करो ना अगर आपको परसीव थ्रेट हो, अगर आपको लगता है कि ये थ्रेटन कर रहे हैं। जो इंसान जमीन पे, सड़क पे, धूप में, गर्मी में बैठा है, वो इंसान किस तरह की थ्रेट हो सकता है आपके लिए? जो किसान पहले ही इतना सरकार से तंग आ रखा है, सिस्टम से तंग आ रखा है। ठीक है, हम बात करते हैं कि किसानों की के कोई भी आदमी सोचता है कि वाह, किसानों की तो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बड़ा हेल्दी खाते हैं, बड़ा बढ़िया जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम किसान की औसत इनकम साल की 20,000 रुपए है। वो उस 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की स्कूल की फीस, थोड़ा बहुत खर्चा पूरा कर पाता है। जो उसका खाना है, जो उसकी मील्स है, वो तो जो वो ग्रो करता है उसी से डायरेक्टली वो अपने लिए निकाल के रखता है। तो उसकी इनकम कहाँ है? अगर सरकार उसकी इनकम को डबल भी कर देगी, जैसे कि कहते हैं कि भी हम किसान की जो एवरेज इनकम है उसको डबल करने का काम करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो है, आप उसको डबल भी कर दोगे तो भी 40,000 रुपए प्रति साल, इट इज नॉट एनीथिंग। और इसका एक बहुत बड़ा आपको एक एग्जांपल ये देता हूं कि बिहार में 2006 में एपीएमसी को अबॉलिश किया गया था। मंडी को कंप्लीटली अबॉलिश करके एक कंप्लीटली फ्री मार्केट बना दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन ये है कि आप देख लो, बिहार इज द स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, क्योंकि वहां का किसान इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि वो अब और कहीं जा नहीं सकता। आपने उस इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि जो इंसान पहले खुद के खेत में, जो खुद की अपनी जमीन पे फसल बोता था, आज वो दूसरे स्टेट में जाता है लेबर के तौर पर, डेली वेज पे काम करता है। और जब इंसान डेली वेज पे काम करता है, आपको पता है लॉकडाउन में कहीं ना कहीं किसान फिर भी बच गए, क्योंकि उनको तो 6 महीने में एक बार अपनी इनकम मिलती है। लेकिन जो डेली वेज वाले थे, सबसे ज्यादा उन लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि जब बिजनेसेस बंद हुए तो सबसे पहले अगर किसी के पेट पे दांत की डेली वेज वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप कहते हो कि भी किसान को हम खेत से दूर करना चाहते हैं, हम जाएंगे कहाँ? इंडस्ट्रीज कहाँ है हमारे पास? जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? हम भी सब मजदूरी बनेंगे उसके बाद। और ये सेम चीज होगी, सारा देश डेली वेज। हम तो चाइना की तर्ज पे जा रहे हैं, हम मॉडर्नाइज नहीं हो रहे, हम एक कम्युनिस्टिक राह पर जा रहे हैं, जहां पर किसान को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, जहां पर किसान को फोर्स किया जा रहा है कि भी आप खेती से दूर जाओ। एक औसत किसान जिसके पास, चाहे आप हरियाणा लो, पंजाब लो, एक आम किसान के पास ऑन एन एवरेज 4, 5, 6, 4 से लेके 10 एकड़ के बीच में जमीन होती है। उस 4 से 10 एकड़ के बीच में उसे अपने परिवार का पेट भी भरना है, उसके अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, उसको अपनी वो सारे खर्चे करने हैं। ठीक है, हर इंसान के बच्चे को एक फोन चाहिए। ठीक है, फोन्स का खर्चा आ जाता है, हर चीज का खर्चा आता है, हर घर में एक एसी चाहिए। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता एक अलग लगता है, लेकिन हर परिवार चाहेगा ना कि मेरे पास भी तो वो फैसिलिटीज हो। लेकिन गांव का किसान ऐसे नहीं बैठता। गांव का किसान बैठता है दिन में 4 घंटे, उसे सुबह लाइट मिलती है, 4 घंटे उसे शाम को लाइट मिलती है। बाकी टाइम वो सारा टाइम गर्मी में बैठा है, वो कैसे ना कैसे करके अपना गुजारा कर रहा है। जो जो इंसान हमारे पूरे देश का पेट भर रहा है, उसके घर में ये हाल होता है ज्यादातर कि वो ढंग से अपना पेट नहीं भर पाता। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि भी घर घर में आप जब जाओगे तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सब्जी, पनीर, इस तरह की सब्जियां नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो किसान है, और पूरे देश भर में आप लोग, वो ज्यादातर चटनी के साथ रोटी खाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको चटनी पसंद है, बड़ा हेल्दी ऑप्शन है या कोई और है, इसलिए क्योंकि वो भी एक मजबूरी है। आप रोज सब्जी बनाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो फसल किसान बेच रहा है, आप ये देखो, वही फसल अगर वही सब्जी उसको कहीं और से लेनी पड़ती है, उसके दाम कितने ज्यादा होते हैं। तो जब इतनी सारी कंपनीज, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, जब चीजों का भंडार होगा, जब ये तीनों ऑर्डिनेंसेस इकट्ठे लागू होंगे,
आप इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो कैपिटलिस्ट सेक्टर को, कि जितनी भी मोनोपोली है उनके हाथ में आएगी, जितने भी जो लॉज हैं वो कंट्रोल करेंगे। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोट किया है। आम फाइन प्रिंट नहीं पढ़ पाता, आम किसान अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लूप होल्स बने हुए हैं, वो उसको नहीं पता कर सकता कि भाई क्या लूप होल्स बने, ठीक है, उसको लीगल हेल्प चाहिए होती है। हर किसान लीगल हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अगर कोई किसान उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे और कहीं ना कहीं किसी लूप होल के तहत जो कंपनी उससे प्रोड्यूस परचेज कर रही है, अगर वो कंपनी कल को कहते नहीं भाई आपका माल खराब है, हम इस रेट पे नहीं लेंगे, हम रेट गिरा के लेंगे, अगर वो कहते हैं आप लेट हो गए अपनी प्रोड्यूस देने में, लेट तो किसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे देश में खेती मैक्सिमम इरिगेशन की बेसिस पे नहीं चलती, मैक्सिमम हमारे देश की जो खेती है हम मानसून पे डिपेंड करते हैं। तो फसल आगे पीछे भी होंगी, कभी प्रोड्यूस लेट भी होगा, कभी प्रोड्यूस टाइम पे भी होगा, कभी सारा प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। और अगर सारा प्रोड्यूस खराब हो जाए तो बहुत बार कंपनीज पेनल्टी लगाती हैं उस किसान पे, क्योंकि हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, हम आप पे डिपेंडेंट है, आप उस पेमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो हमें आगे नुकसान हो। वो किसान एक बार नहीं फिर 2 बार मारा जाए क्योंकि फाइन प्रिंट वो पढ़ नहीं पाए। और अगर खुदा न खास्ता वो किसान कहे कि नहीं मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को गलती से कहीं ब्रेक भी कर देता है तो दोषी वो ही किसान पाया जाएगा जो पहले से ही इसी कॉन्ट्रैक्ट से तंग आ रखा है। आप काफी साथी मेरे को लगता है लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपने देखा है कि सिविल केसेस के अंदर कंपनीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, देयर ऑल वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, देयर बहुत ग्रे एरिया होता है उसके अंदर। और उसी तरह का ग्रे एरिया इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जब बनेगा तो एक तरफ यू हैव बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े मिल्स, बड़े बिजनेस हाउसेस जो अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स दुनिया के, और एक तरफ आपके पास एक ग्रुप है लोगों का जो नहीं कर सकते वो सारी चीजें अफोर्ड। तो फिर कहीं ना कहीं आप एक चीज देख लो, इस लीगल बैटल के अंदर किसान ही मारा जाता है। चलो वो किसान कहीं ना कहीं लड़ भी ले अपना केस कहीं पर उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है केसेस चलते हैं साल, 2 साल, 3-4 साल, 5 साल, 10-10 साल चलते हैं। वो 10 साल वो किसान तारीख पे नहीं आ सकता, ही कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इन चीजों की वजह से बहुत 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 ज्यादा नुकसान हो जाता है किसानों को। अगर आप सच्ची में किसानों को मजबूत बनाना चाहते हो तो उनको एम्पावर करो, उनको एम्पावर सेलिंग पॉइंट पे मत करो, उनको एम्पावर बेस लेवल पे करो। एमएसपी उनका हक बनाओ, एमएसपी को एक लॉ बनाओ, जितने भी बायर्स हैं उनको रजिस्टर्ड बनाओ कि हर कोई इंसान किसी से नहीं खरीद सकता, उनको कोर्ट में जाने का हक दो। अब एक लॉ ये कहता है, जो सेकेंड ऑर्डिनेंस है, जो फार्मर्स, मैं एक बार उसको आपका नाम पढ़ लेता हूँ, ये एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, वो ये कहता है कि आप तिल का, तेल का, आलू का, प्याज का, ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज का भंडारा कर सकते हैं। जिस किसान के पास 2, 4, 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चलो 15 एकड़ जमीन है, ठीक है, जिसके पास 30 भी है, वो भी एक गोदाउन बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी एक कोल्ड स्टोरेज बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि इसका भंडारा प्रमोट करो और फार्मर्स के लिए प्रमोट करो, उनको फायदा देने के लिए प्रमोट करना चाहते हो, तो देश भर के अंदर मंडियां तो बनी है, उन्हीं मंडियों के अंदर जो फार्मर्स उन मंडी के अंदर बेचते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोर और उनके लिए गोदाउन बना दो, जहां पर वो मिनिमम कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पर जाके अपना सामान उनको टैग करवा के, अपनी बोरियों को टैग करवा के एक सेफ जगह पे स्टोर कर सकते हैं, खराब भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आप किसानों को मजबूत कर रहे हो इन चीजों से। तो हमारे पास मंडियां है, जी हमारे पास जगह है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने से फायदा है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, उसके अंदर फिर नई दिक्कतें आएंगी, उसके अंदर फिर नई प्रॉब्लम आएंगी, वो सोल्यूशन नहीं हो सकता कभी। जो आपके पास है उसको इम्प्रूव करो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका. You have हाँ raised जी, some very important points, and at this point of time, I would like to come back again to Brijinder sir. And here हाँ is जी, one important takeaway from the discussion we have had in the last 2 days, sir, Brijinder sir, that there are some common concerns which have been raised by all the parties. The first concern being that why do we have to make a new law? Why don't we, Brijinder sir? I'm sorry, we will. There. हेलो. Hello, Brijinder sir, can you? Yes, sir, Brijinder sir, हाँ can जी. you hear us? हाँ जी, सुन सकता हूँ मैं. Yes, sir. Yeah.
जी जी ब्रिजेंद्र सर, मेरा ये पूछना था कि हम कल भी हमने ये कार्यक्रम किया था, आज भी कर रहे हैं, तो कुछ कॉमन कंसर्न्स रेज की जा रही हैं। जो सबसे पहली कंसर्न ये है कि हम एपीएमसी क्यों खत्म कर रहे हैं, जो एपीएमसी की रेजीम है उसमें ही हम क्यों रिफॉर्म नहीं लाते हैं, हमको एक नया कानून क्यों बनाना चाहिए। सो ये इंडिया में बार बार ये डिस्कशन होता है दैट वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री एंड वी आर एन अंडर एनफोर्स कंट्री। तो आप एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं सर, अब आप यू हैव डॉन्ड अ न्यू हैट, नाउ यू आर अ पार्लियामेंटेरियन, सो यू कैन गिव अस इनसाइट्स दैट व्हाई डू वी नीड अ न्यू लॉ फर्स्टली, एंड द सर सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी हैव टू टेक द रूट ऑफ ऑर्डिनेंस राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुई है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रही हैं, फार्मर्स कह रहे हैं कि उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है सर कि नया लॉ क्यों हम बना रहे हैं and why are we taking it through the ordinance way, sir? That is something which we would like to ask you, sir. देखिए, first of all, let me just say कि APMC is not being done away with. MSP is not being done away with. There seems to be a misconception on that count. It is the farmer's choice whether he wants to get into some kind of a contract with a लेकिन मैंने कहा कि कितना बड़ा वो क्षेत्र है, सेंटर है, बड़ौदा के लिए भी वो सेंटर है, वहां पर मोहल्ला के अंदर और जाट समाज की एक थोड़ा सा मुझे वो लगता है तो उन्होंने Sorry, sir. Yes, sir. Someone Okay. intervened. I Yeah, request can everyone you- to just turn off their microphones and their video feed, except Brijinder, sir. Please allow us to. Yes, sir. So what I was saying was that the concern about MSP might be relevant if you look at the longer term. But to say that these ordinances are doing away with MSP is a misconception, and it could be it could be some kind of a misguided view which is being presented to the farmers. The mandis under the APMC continue to exist. The MSP remains. A farmer who is not willing to go to a private operator or go to a private mandi or whatever form that takes place, whether it's his factory premises or whether it's the farm gate or wherever that produce is to be collected, if he enters into some kind of an agreement with the private operator, that's a choice given. Nowhere is it said that the farmer will be bound to a certain private buyer for it. That is entirely the farmer's choice. If he wants to continue with the existing system, which is to get his produce to the designated mandi or the subyard set up under the APMC Act, he's absolutely free to do that, and MSP will be assured. But if he's entering into a private contract, then of course it's the terms of the agreement, the farming agreement which he enters into, the conditions of those will come into play. So to say that MSP is being done away with or the mandis are being done away with, I think that's a bit of a stretch. But yes, it's a concern, as I said, for the longer run. Secondly, why this new act? This new act precisely because it's been decades that we are continuing with the same system, and time for change has come. As my younger brother Arjun mentioned about land holdings getting smaller and smaller. It's a fact. आज के दिन ज्यादातर हरियाणा में भी जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो करीब 1.5-2 एकड़ के आसपास की हैं. And what kind of viability you can get, economic viability you can get out of such holdings is anybody's guess. So unless these small landowners or people who are working very small parcels of land, unless they come together and negotiate with the private dealer, they will most likely come to the government mandis only and send it the MSP. But new act was a new
ordinances as yet, which might take the shape of act tomorrow when the parliament is convened and the ordinances are put up before the legislature. So this is, as I said, the acts we are dealing with have been there for a very, very long time. Punjab has tried to amend the APMC and nothing seems to come out of it. This fear that private sector will gobble up everything. So far, Punjab's experience, I think their act came in, APMC Amendment Act was, I think, 2017. In 3 years, not a single private mandi has come up. So these fears are unfounded. Yes, private players would come into the picture now because with this new act, a lot of regulations which the states exercised will not be there when these under these ordinances or the new act whenever it comes in. So to that extent, these ordinances were necessary. And as I said in the beginning also, that such structural reform in agriculture is coming after ages. So we have gotten used to living under a certain regime, and status quo is comfortable for everyone. But it is this status quo which is stifling the farmers' progress right now. I fully agree with Arjun when he says that why can't farmers' children go out into the wider world of commerce and industry and jobs and all that? Well, that will happen only if you are freed from the land. In fact, here the government is not even trying to do that, as what happened in the enclosure movement in the 18th century in England, or what Stalin did via collectivization in Soviet Russia. India is not trying to do that. But yes, opportunities have to be taken, and zamana jo hai wo badal raha hai. It is the new paradigm which has come in since the mid 1990s in India, and farmers have to take the lead in exploiting the opportunities it offers, and not to remain stuck in a time warp and continue to do the kind of farming, the kind of marketing which they've been doing for 50 years. That did serve a purpose. Food security was an issue. That's why all these systems are set in place. But now, it is very evident that a large parts of India, a large number of states have reached a stage where they are producing surplus, perhaps even more than Haryana and Punjab. So the food security aspect is no longer confined to a small region in northwest of India, but it is spreading across all over. So the farmers have to look for the best opportunities possible to them, and these ordinances are opening or presenting those opportunities to the farmers. Whether they take them or not is their choice. As I said in the beginning, MSP remains, the government mandis are in existence and will remain so. Thank you. Thank you so much, Brijendra sir. और अर्जुन जी, आप सुन रहे थे ब्रिजेंद्र जी को, और ब्रिजेंद्र जी ने कहा है कि MSPs are not being done away with. So that is one important takeaway which he is saying. And secondly, उनका कहना है कि जो कि मैं भी कुछ लेवल पे अग्री करता हूँ कि there are certain misnomers which are being fed into the farmers' mind. किसानों को पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं दी जा रही है. तो अर्जुन जी और ब्रिजेंद्र सर, आप दोनों की परमिशन से मैं एक्ट की कॉपी शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन पे. तो एक सेकेंड, ताकि हम एक्ट देख लें और ये देख लें कि एक्ट क्या कहता है एक्चुअली में. तो जैसे एक बात अभी कही जा रही है कि ये जो एक्ट है, ये इट बार्स द jurisdiction of court and the farmers will not have any recourse to taking to the judicial system. तो हम एक्ट पढ़ते हैं एक बार और हम देखते हैं कि एक्ट का क्या कहना है. तो इज द एक्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन? क्या हम एक्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं सर, नहीं अभी तो नहीं आ रही. जस्ट यस यस ओके. अर्जुन जी ने भी ये बात कही. हाँ, अभी आ गया होगा. अर्जुन जी ने भी ये बात कही है और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कल ये बात कही है, और हम ये थोड़ा देखते हैं कि क्या एक्चुअली में कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन बार किया गया है. तो मैं फिर से मैं
जाना चाहूंगा सेक्शन 19 जो कि कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऑर्डिनेंस है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, जिसकी बात अर्जुन कर दी गई है, विच इज गोइंग टू बी अ कंसर्न। तो अगर हम देखेंगे सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट, इट सेज बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है अर्जुन जी, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये एक्ट दिखाने के बाद, कि यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार की गई है, हायर जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन बार नहीं करी गई है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ये जो लिमिटिंग क्लॉजेस होते हैं, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो उन केसेस में लिमिटिंग क्लॉजेस लाए जाते हैं जहां पे सिविल कोर्ट्स में, आप खुद कह रहे थे कि मामले का निपटारा होने में कई दिन लग जाते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन क्रिएट किया गया है एसडीएम्स और डीएम्स का, और एक टाइमलाइन दी गई है, एक समय सीमा दी गई है जिसके भीतर जो भी किसानों की समस्याएं हैं या जो भी उनके बीच में जो भी आपसी विवाद होगा, उसको एक समय सीमा जो कि 30 दिन के अंदर है, जैसे आरटीआई एक्ट में होता है कि आपको इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर मिलेगी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं और वो भी 30 दिन के अंदर डिस्पोज होगी। तो अगर सिविल कोर्ट में यही मामला जाता, अगर विवाद का मामला कहीं सिविल कोर्ट में जाता, तो उसमें कोई समय सीमा नहीं है, जबकि अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट में समय सीमा दी गई है। तो ये कहां तक सही होगा ये कहना कि जुरिस्डिक्शन बार कर दिया गया है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब सर का कहना ये है कि ये रिफॉर्म है और रिफॉर्म्स को हमको खुले मन से लेना चाहिए, कुछ गलतियां हैं तो गलतियों में हम सुधार कर सकते हैं, जैसे कि ये अभी ऑर्डिनेंस की स्टेज पे है तो हम इसमें सुधार प्रपोज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पूरी तरीके से इसे नकार देना कहां तक ठीक होगा? तो इन दो सवालों पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ भ्रांतियां बनाई जा रही हैं किसानों के दिमाग में कि ये एक्ट सही नहीं है, ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है, जबकि जो उसकी वास्तविकता है, जो इसकी सच्चाई है, कुछ और है। तो अर्जुन जी आप प्लीज ये बताइए कि क्या किसी तरीके से लोगों में जानकारियों का अभाव है जिसके कारण किसानों के बीच में भ्रांतियां फैल रही हैं, या फिर सही में इस ऑर्डिनेंस में कोई समस्या है? अर्जुन जी। सबसे पहले तो जी मैं दो छोटे से पॉइंट एक बार ऐड ऑन करना चाहूंगा ये चीज बोलने से पहले, कि जैसे बताया गया कि भाई कहीं पर भी इस ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं कहा गया, विजेंद्र सर ने बताया कि कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि भाई मंडी नहीं चलेगी, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस में ये भी है कि मंडी में जो सेल होगी दैट इज टैक्सेबल, और मंडी के बाहर जो सेल होगी दैट इज नॉट टैक्सेबल। किसान नहीं फैसला करता कि वो कहाँ बेचेगा, व्यापारी फैसला करता है कि वो कहाँ खरीदेगा। अगर व्यापारी मंडी में जाना बंद ही कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टैक्स बचाने के लिए वो मंडी के बाहर ही खरीदेगा, तो जब किसान ही मंडी के बाहर जाना शुरू, जब व्यापारी ही मंडी के बाहर जाना शुरू कर देगा तो फिर किसान मंडी में जाके क्या करेगा? सबसे पहली चीज एक है। दूसरी चीज जैसे सर ने कहा कि भी हम चाहते हैं कि किसान बाहर जाए, इन ऑर्डिनेंस से किसान बाहर जाना चाहेगा की वजह से वो आगे इंडस्ट्रीज में जाना चाहेगा, लेकिन हमारी जीडीपी बहुत कम है इस समय पे। पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी आई थी, अब जीडीपी बहुत लो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है। तो वही बात है, जब तक नई चीजें जनरेट नहीं होगी तो वो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी ही नहीं। इकोनॉमी स्टेबल हो, इकोनॉमी वापस ग्रोथ में जाए तो ऑटोमेटिकली फिर आपको इन कानूनों की भी जरूरत नहीं, फिर तो किसान खुद अपने आप आगे बढ़ता जाएगा जब उसको किसी और सेक्टर में उसको कहीं पर और जॉब्स दिखेंगे। दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं किसानों को इस चीज के बारे में गलत बताया जा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है ऑर्डिनेंस के बारे में। सबसे पहली चीज ये देखनी है, इस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा किसान खुद उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक चीज देखिए, जो आम आदमी है वो सरकारी दफ्तर में जाने से डरता है। आपको अगर किसी काम के लिए डीसी के पास जाना पड़े, ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स होते थे, हम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते थे तो हमें लगता था यार कोई ऊप चूक ना हो जाए, तो आम आदमी डीसी के दफ्तर में जब जाता है वो वैसे भी घबराता हुआ जाता है, वो पूरी अपनी ढंग से बात भी नहीं रख पाएगा कहीं ना कहीं। और वही सेम चीज होगा जनरली, जो आपके सरकार, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी उस चीज को ज्यादा फेवर करेंगे। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि भाई वो आगे हायर कोर्ट में वो आगे अपील कर सकता है।
अगेन यहाँ पर बात अपील की नहीं है, बात यह है वो नहीं करना चाहता, वो ऐसी सिचुएशन आए क्यों कि उसे अपील करना पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पर मैं रहता हूँ जी, जो ये एरिया है, जो ये सिरसा बेल्ट है, गंगानगर, अबोहर, सिरसा, ये एरिया कीनू के लिए बहुत फेमस है। कीनू एक सिट्रस फ्रूट है, लाइम का और ऑरेंज का एक ये मिक्सचर हाइब्रिड होता है। ये काफी इसकी अच्छी सेल है, लेकिन ये विंटर्स में ग्रो करता है। विंटर्स में ग्रो करता है, लेकिन इसको कंडीशंस वो सूट करते हैं जो हमारे एरिया। तो इस फ्रूट को विंटर्स में जनरली कोई जूस नहीं पीता, तो जनरली साउथ इंडिया में ये फ्रूट बेचा जाता है और बिल्कुल कंप्लीटली फ्री मार्केट है। कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसी भी उससे कहीं पर भी खरीद सकता है। ये सेम सेम ऑलमोस्ट ये सेम सिचुएशन है फ्री मार्केट की। प्रॉब्लम ये आती है कि आम आदमी, आम किसान कई बार इस चीज में ठगा जाता है कि उसने एक ट्रक आगे बेचा 5 लाख का, 10 लाख का, 2 ट्रक बेचे, जितने भी ट्रक बेचे, वो ट्रक पहले तो यहाँ से आगे जहां पर भी उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक जाता है। और अगर वहां जाके जो बायर है अगर वो मुकर जाता है, तो बात ये नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि भाई वो रिकवरी करने का जो खर्चा है, रिकवरी करने में जो टाइम लगता है, रिकवरी करने में जो किसान पे स्ट्रेस होगा। आपको पैसे आज चाहिए, आपको फीस आज भरनी है, आप 6 महीने तक थोड़ी कहीं धक्के खाओगे, आप 2 महीने भी क्यों कहीं धक्के खाओगे। आज आपको अपने बिजली का बिल भरना है वरना बिजली कट जाएगी, आज आपको पैसे चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि अगर कोई इशू राइज करते चलो सॉल्व हो जाएगा, टाइम आउट है, लेकिन 2 महीने कौन वेट करेगा इस चीज के लिए। और अगर ये हायर कोर्ट में जाता है तो वहीं पर वही बात आती है, आम आदमी डरता है कोर्ट से, क्योंकि आम आदमी लीगल लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। और जब ये चीज होती है, जिस चीज को हम नहीं समझ पाते, जिस प्रोसेस को हम नहीं समझ पाते, हम जनरली उस चीज से डरते हैं। एक ये कि बहुत नॉर्मल एक ह्यूमन एलिमेंट है। अगर आप किसी को जी रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इफ यू आर द वन बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, आपका तो सब दाव पे है ना। आप चाहो ना चाहो, लेकिन आप पे उस चीज का मेंटल स्ट्रेस बहुत है। तो अगर वो इंसान उस रिकवरी के लिए कहीं धक्के भी खाता है, कोर्ट में भी जाता है, एसडीएम के पास भी जाता है, डीसी के पास भी जाता है, उसका टाइम भी तो लग रहा है, उसको धक्के भी तो लग रहे हैं। मंडी में कहीं ना कहीं उसको गारंटी है कि जब सरकार रिक्वायर करेगी तो भाई मेरी पेमेंट आएगी ही आएगी। और अगर उसको पैसे जल्दी चाहिए तो वो आरती से पैसे ले लेता है, और जब किसान की पेमेंट आती है आरती उसमें से काट लेता है। सबसे बड़ी अर्जुन चीज जी ये देखने यहाँ पे वाली है। हाँ जी 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 सॉरी, मैं आपको सर, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट नहीं जाना चाहता किसान, और जब एपीएमसी मंडियों से किसान खरीदता है तो एक तरीके से उसके पास श्योरिटी रहती है। लेकिन सर आपको भी ये पता होगा कि किस तरीके से एपीएमसी एक्ट के आने के बाद जितनी भी मंडी, उसमें भी जब सरकारी एलिमेंट्स जब आ जाते हैं तो एक तरीके से एक रैम्पेंट, आप बोल सकते हैं, करप्शन भी एंटर करता है। और इस पूरे देश का एक्सपीरियंस है, अगर आप देखेंगे तो एपीएमसी मंडियों को भी किसानों ने नकारा है, जिसमें पहले व्यापारी मिलके, एपीएमसी के पहले व्यापारी मिल जाते थे, उसके बाद ये हो गया कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो मिल जाते हैं। तो किसी तरीके से ऐसा है कि दोनों के आप मतलब हम ये नहीं नकार सकते कि दोनों में कमियां नहीं है। तो आप ये क्या कहेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है अर्जुन जी? वे फॉरवर्ड है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। वे फॉरवर्ड है कि भाई किसान को आप ज्यादा पावर दो, कि भाई जब ये लॉज बनते हैं तो किसानों के जो यूनियंस है, जो वो है, इनसे बात करो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खुद की कोई प्रॉब्लम समझ सकता है तो वही इंसान है जिसको वो प्रॉब्लम है। आप जब किसानों से बात करोगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपको बताएंगे कि हमें किस चीज से फायदा है, हमें किस चीज से नुकसान है। एक तरह से वो बात बिल्कुल सही है कि मंडियों में करप्शन होती है, पहले व्यापारी करते थे, फिर अफसर करने लगे, पर वही सेम चीज तो आ जाती है, अब बड़े मिल वाले कर लेंगे जब वो खुद मोनोपोली बनाएंगे। आप उस चीज को तो नहीं रोक रहे, आपको अगेन आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, आपको उसकी गवर्नेंस चाहिए। अगर मंडी के अंदर एक कमेटी बनती है इनकी क्या कहते हैं व्यापारियों की, तो आप किसान को भी उसके अंदर जगह दे दो। मंडी के अंदर वही बात है, इंप्रूवमेंट हमें चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई वो पुराना सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, सालों पुराना सिस्टम है, जमींदारों के टाइम का सिस्टम है, इट डज नीड इम्प्रूवमेंट। बट व्हेन यू हैव एन एग्जिस्टिंग सिस्टम जिसके साथ लोग सेटिस्फाइड हैं, आप एक नए सिस्टम में धकेल के उनको आप घबराहट की तरफ लेके जा रहे हो। आज देश भर के अंदर किसानों ने धरना दिया है। जो पीपली में जो धरना था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं ऑर्गेनाइज किया था, किसानों ने खुद ने किया। एंड शायद इसी वजह से उनके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं था तो पुलिस के ऊपर भी दबाव नहीं था।
सबसे बड़ी चीज ये है, आप कहते हैं जैसे वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड सबसे ज्यादा तब होता है जब आप लोगों को वॉइस देते हो। जी कहीं ना कहीं किसान की वॉइस सबसे ज्यादा दबाई गई है। आपको जी मैं एक बिल्कुल। बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा। इंडिया में बिग बिजनेस हाउसेस को जब दिक्कत आती है, अभी रिसेंटली लगभग 2 लाख करोड़ का उनको वेव ऑफ किया गया, उनके लोन्स वेव ऑफ किए गए। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह देती है कि किसान के लोन हम वेव ऑफ करेंगे, तो इतना बड़ा इशू बनता है कि भाई इनको तो फ्री में दे रहे हो, इनको तो ये कर रहे हो, ये क्या मतलब बनता है, ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी है, इनके लिए क्यों जा रहा है। लेकिन बात आप ये देखो ना कि अगर उसको एक बार अगर आप उसकी मदद करते हो, वो 10 साल तक आपका शुक्रगुजार भी रहता है सरकार का। वो सरकार की नीति में विश्वास करना शुरू करता है। अगर वे फॉरवर्ड है तो सबसे पहला कदम है कि आप किसान की सुनो। कहते हैं ना कि भाई आपको सबसे पहले जेस्चर आपको करना पड़ेगा। वो कानून बना के नहीं होगा, जी जी वो उनके बिल्कुल साथ अर्जुन जी। बात करके डिस्कशन करके होगा। जी जी बिल्कुल अर्जुन जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अग्री करता हूं। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा ब्रजेंद्र सर से, देन वी विल ओपन इट फॉर आवर ऑडियंस आफ्टर स्पीकिंग टू राजबीर सर। तो ब्रजेंद्र सर, वन important point which is figuring out in this whole discussion is that the government has not even spoken to the farmers, who are the most interested parties in this whole scheme of things, because the ordinance is about the farmers, and the farmers have not been consulted with, which Mr. Arjun Singh has rightly pointed out. So, do you really think that this should have been the correct way of bringing forward this important legislation? Let's say, even if it is for reform purposes, agreed, it is a way forward and it is a stepping stone towards reforms, agreed. But if something was pending, these reforms were pending for so many years, they could have waited for at least 2-3 more months, and the whole act could have been formed by through proper legislative mechanism, by first of all having pre-legislative discussions, then putting it in the parliament, then referring the bill to the select committees, and taking the whole democratic process within its fold, which has not happened. And right now there are protests all across the country. So whatever the government was trying to do, even if it was for the benefit of the farmers, somehow the government has failed to take the farmers into confidence, and now we are seeing a large scale discontent within the farming communities. That is my point one, which Arjun sir has said. And secondly, there is an age old tradition of bringing ordinances in the agricultural sector. In fact, one of the most celebrated cases in the history of Indian judicial system regarding ordinances is the case of Shri D.P. Vadhva. And D.P. Vadhva was an agrarian economist who actually brought forth the whole menace of the ordinance system, where the ordinances were being re-promulgated after each assembly session without even referring it to the parliamentarians, or for that say the assembly members. And that became a landmark case where the Supreme Court said, no, you cannot re-promulgate the ordinances. It has to be referred to the assembly members, and that is how laws should be made. So my important question to you, sir, is why the government has brought this ordinance, especially in the times of the pandemic, firstly. And I would also like to draw your attention, Brijinder sir, to the act again. And I would like to actually uh, show you some sections with your permission, Brijendra sir, if I'm allowed to share it on my screen. Anji, please go ahead. Brijendra sir? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. I'm just bringing it on the screen. So my question is, sir, that under these acts, the government has to frame rules and guidelines, unfortunately, which has not happened. So for even the simple thing of complaint adjudication, the government has to prescribe the manner in which the farmers will have to submit their complaints. Still, there has been no guidelines on that as to how the farmers are going to submit their complaints to the authorities, firstly. So all the guidelines and the rules which had to be made, they have not been made still. So the government is saying, at one hand, it is saying
that first of all, the ordinance is very necessary, so we had to bring it during the pandemic times. But at the same time, the most important fundamental rules have not been made. So the question is why we have taken the ordinance way, why we are not going by the proper legislative mechanism, and is this ordinance going to be referred to the parliament? Since you are a parliamentarian from the ruling party, sir, so you would be able to shed some light on this. That was there any consultation with the parliamentarians before presenting this ordinance? So please help us to understand why did the government go through the ordinance way, and why did it consult all the parliamentarians, sir? That is the important question. Yeah, thank you. 2-3 short points first. It was mentioned, I think, by Vedansh you only earlier, that there is this apprehension that land of the farmers will be taken away at some point, some stage. I don't know how that impression has come about. Section 15 of the Farmers Empowerment and Protection Agreement and Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020 clearly states, and I quote, "Notwithstanding anything contained in Section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer." I don't think it needs any more elaboration than that. It's quite categorically stated. Second point I want to make about is regarding the court, the non-involvement of the court. Well, you might be aware, most of you are law students, but most of the laws dealing with lands or the issues related thereto are to be summarily decided in the court of a sub-collector, a collector, or maybe higher up when it goes to the financial commissioners and all that. So similar thing is kept here. Here, the more emphasis is on conciliation, on a conciliation board. And if that doesn't succeed, then the SDM or the government system comes into the picture. And I'll give you one small example: Village Common Lands Act, because that's an act which is very widely used in states to settle these land disputes regarding common village land. That also expressly bars the civil court as far as jurisdiction is concerned. But invariably, most of those cases, if they are not sorted out, land up in the judicial domain at a subsequent stage. So it all depends on the parties to a dispute, how far they want to agitate. So it bars the civil court because these are supposed to be summary proceedings. These are not supposed to be detailed proceedings. That's why the time frame given is 30 days at the initial stage and 30 days with the appellate authority. So that confusion should be out of the way. Secondly, ordinances. I really don't know about the Vadhva thing which you mentioned. I'm not aware of it. But ordinances are a government's way of coming up with something which the government feels is urgently required. So this has come in, but rest assured, it will be taken up in the parliament. It will be discussed threadbare, and thereafter an act will come into force. To that, I may just add that perhaps, policy formulation requires what is called as a policy window. So maybe the government felt the crisis of COVID, the crisis of economy, the crisis of the agrarian sector, maybe it was the government's thought that COVID has provided that opportunity, a window of opportunity wherein these policies could be brought in and subsequently put before the parliament. As far as the rules are concerned, आप सब law students हैं, the act comes first. The rules are generally framed subsequently. So it rarely is the case that an act comes up with the attendant rules. Rules come subsequently, and rules are formed by and by. So this act is only, this ordinance is only came in June, just 2.5 months back, and the parliament is set to meet from the 14th. So it's not as if
There has been a lot of time. This ordinance has been in existence for years and years. It has just come in few months back, and I'm sure that this will be taken up in the parliament, and subsequently the rules will also be framed thereunder. Thank you. Sure, sir. So this, I think we have spoken with our guests at length. Now we will open our session for a few questions from our attendees. We don't have much time, so we will have only 3 to 4 questions. But before that, राजवीर सर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं. राजवीर सर को मैं कहूंगा कि सर आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताकि हम आपसे भी जान सकें कि सर आपका क्या ओपिनियन है. आप एक पॉलिटिशियन नहीं है, यू आर वर्किंग फार्मर्स, तो आप हाउ डू यू मेक द होल सिचुएशन. सर आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कि आपका क्या ओपिनियन है. आपने सुना हमारे दोनों जो मुख्य अतिथि हैं आज के. सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. ये आप अनम्यूट हो गए हैं. आप मुझे सुन पा रहे हैं राजवीर जी? Yes, am I audible? यस यस राजवीर जी, यू आर ऑडिबल. सर सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक हमने हमारे दोनों जो आज के मुख्य वक्ता हैं उन्हें सुना, और हमें बहुत ही इन्फॉर्म डिस्कशन हुआ आज. अभी तक दोनों ने अपनी बातें रखी. तो आपका क्या कहना है सर? आप भी किसानों से जुड़े हुए हैं, और आप इस पूरी सिचुएशन से व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट. और अभी मैं जब तक राजवीर सर से बात कर रहा हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज भेजें. हम 3 से 4 क्वेश्चन डील करेंगे, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम. तो राजवीर सर आप बताएंगे सर प्लीज कि आप व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस. Thank you, Vedant, and thank you, सृष्टि. हम स्टार्ट करने से पहले लेट अस कम टू APMC. उसमें जो कमियां थी, जो दिक्कतें थी, उनको क्या क्या दिक्कतें थी वो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2, 4, 5 मैं आपको बताऊं. मोनोपोली ऑफ APMC इन ट्रेड ड्यूटी deprives and farmers for deprives of farmers to the better customers. Number 2, curtailization of APMC procure produce of farmers on cheap and low prices and sale at high prices. ये कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे फार्मर्स के लिए दिक्कतें थी. उन दिक्कतों के मद्देनजर एक 2010 में शांता कुमार कमेटी का गठन हुआ था. उस शांता कुमार कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी, वो एक नजर डालने पे पता लगता है कि उसमें कुछ चीजें जो उन्होंने कही थी. फूड सिक्योरिटी एक्ट में बेनिफिशियरी उन्होंने कहा था कि 67% टू 47% करने की जरूरत है, 40% करने की जरूरत है, टू अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू प्रोक्योर एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. और तीसरी जो कही थी, MSP पर बोनस वो वैसे देने की बजाय फार्मर्स को सीधा डायरेक्ट कैश देने के लिए बात कही थी. जो आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि जो शांता कुमार की कमेटी थी उसमें ये डिस्क्लोज होके आया है कि सिर्फ 6% फार्मर्स को ही अपनी फसल का MSP रेट मिल पाता है. ये वो सारे कारण रहे हैं जिसके कारण से गवर्नमेंट ने ये जरूरी समझा. और तीसरी जो उसमें एग्रीवेट चीज ने किया है पेंडेमिक ने, कि इस प्रकार के ऑर्डिनेंसेस लाए जाएं जिसमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए. इसमें कुछ चीजें ये हैं, कह रहे हैं कि भाई आप इसमें MSP का कोई जिक्र नहीं है. मेरा मानना है MSP गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है, और अगर एक बार ही उसको कह दे तो फिर कल को वो बढ़ेगा भी, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बढ़ेगा. तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. गवर्नमेंट हर साल अगर MSP डिसाइड बोल भी देगी MSP रहेगा, तो वो रेगुलेट करेगा मंडियों में. फिर इस पे ये कहा कि मंडियां को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं. अगर किसी की बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग एज इट इज जारी रहेगी. टैक्सेस जो लेवी हैं वो देना पड़ेंगे, लेकिन जिसने अपनी इनकम को बढ़ाना है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकता है.
यहाँ पे बहुत सारी मंडियों में भी दिक्कतें थी, उनको पेमेंट लेट मिलती थी, पेमेंट लेट मिलने के अलावा उनको पर्ची लेट मिलती थी, जिससे उनको लोन लेने में भी प्रॉब्लम थी किसानों को। तो ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर दिया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये ऑर्डिनेंस ला के आने पड़े। थैंक यू सो मच राजवीर जी, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ नृपिंदर जी हैं जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं हरियाणा से। मैं नृपिंदर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वीडियो खोल दें और अपना माइक भी अनम्यूट करें। जब कंप्लीट कोई रुका हुआ आपसे मिलने के लिए, कहाँ पे? पीछे खड़ा हुआ है जी। लड़का काफी देर से। वेदांश जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। बहसवाल जी जी, एक सेकेंड, मैं जी नृपिंदर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सवाल है, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप लीगल लिटिगिटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं सर। कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर ऐसे कुछ सवाल आप समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ब्रजेंद्र सर भी हैं हमारे साथ, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, सवाल ये हम सब डिस्कशन जो हो रही है इसमें एक कॉमन सवाल है जिसका जवाब हम इंतजार करेंगे कि पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसका फाइनल जब ये एक्ट बन रहा होगा उस वक्त वो क्या जवाब देंगे। यहाँ जवाब तो नहीं मिल पाएगा, पर मेरा सवाल जो मेरे ख्याल से सारे डिस्कशन में ये एक सवाल रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है उसमें एग्रीकल्चर आता है स्टेट सब्जेक्ट और कॉमर्स एंड ट्रेड आता है कंकरेंट लिस्ट में। यहां जो एपीएमसी डेवलप की गई है वो तो स्टेट सब्जेक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने कर दी, और अब ऑर्डिनेंस जो आया है ये कंकरेंट लिस्ट में जैसा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके तहत भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस कर दिया। अब जब मंडी में कोई भी खरीद की बात आएगी या किसान के द्वारा बेचने की जब बात आएगी, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में कह लो, पूरे देश में कह लो, जहां कहीं भी मंडी है, क्योंकि मंडियां हरियाणा में बहुत इफेक्टिव हैं, तो 1.01% कैंपस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के जो स्टेट लिस्ट में एपीएमसी मंडी बनी है उसके अंदर होगा स्टेट कंट्रोल, और ठीक उस मंडी के बाहर 99.99 एरिया जो होगा उसमें जो भी पैन कार्ड होल्डर होगा वो परचेज करने के लिए उस पैन कार्ड को दिखा के ये कहेगा कि मेरे पास भारत सरकार का लाइसेंस है और मैं यहां खरीदूंगा, जिससे कि 6.5% टैक्स, मैं हरियाणा में बैठा हूं इसलिए हरियाणा का टैक्स की बात कर रहा हूं, दूसरी स्टेटों में मार्केट फीस और आढ़त और ये कुछ कम ज्यादा होगा, पर ये टैक्स मैं नहीं दूंगा और मैं सीधा खरीदूंगा। निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि वो उसका 50% भी बेनिफिट अगर फार्मर को दे देगा तो फार्मर से तो वो 100 रुपए ज्यादा में खरीद लेगा, लेकिन उस मंडी में जहां स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है वहां पे जाएगा कौन 6.5% एक्स्ट्रा देके? व्यापारी कौन खरीदने जाएगा? चाहे वो आटा मिल वाला हो, चाहे दाल मिल वाला हो, चाहे वो आपके कॉटन वाला हो, या चाहे कोई ऑयल सीड खरीदने के लिए जाना हो, तो वो वहां उस मंडी में जाएगा क्यों? एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन इस बात से आ गई है कि मंडी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और मंडी के गेट के बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक सवाल है जिसका इंतजार रहेगा कि पार्लियामेंट में जब ये एक्ट बन रहा होगा तो इसको किस हिसाब से एग्रीकल्चर मिनिस्टर जस्टिफाई करेंगे। और यहां मेरी ख्याल से मैं कोई कंट्राडिक्शन आपस में नहीं बना रहा, और इस बात से एग्री करते हैं या जो भी अभी आपके गेस्ट हैं ये डिसएग्री करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, ओपन है। पर ये मेरे दिमाग में एक सवाल है कि मंडी के अंदर स्टेट और मंडी के गेट के बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू। वेदांश जी। जी सर एक सेकंड। हाँ, मैंने जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि किस तरीके से दोनों एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होगा, कि किस तरीके से मंडी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी और उससे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा, तो किस तरीके से दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जो मसला है
वो हमें पता चलेगा जब ये एक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल इशू रेस किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नृपेंद्र जी आपका। हमारे एक और दर्शक हैं, किसलय हैं। किसलय का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन जी, ब्रजेंद्र जी, जो भी आप में से आंसर करना चाहे, राजवीर जी, उनका क्वेश्चन ये है कि जो हमारे देश के फार्मर्स हैं वो दे डोंट हैव लीगल लिटरेसी, और इतना इम्पोर्टेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस उनके लिए बन रहा है, तो सरकार किस तरीके से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। तो इफ एनीवन ऑफ आवर पैनलिस्ट वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आंसर करूं? सर प्लीज सर। देखिए, लीगल लिटरेसी मास स्केल पे तो मेरे ख्याल से किसी भी कम्युनिटी के पास नहीं होती। यदि आप ट्रेडर्स की बात करें या दुकानदार की बात करें, आपको क्या लगता है एक साधारण दुकानदार को पता होता है कि लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? इसी तरह से जी सर, पता तो नहीं होता ब्रजेंद्र सर, सिर्फ ये क्वेश्चन। जी सर, पता नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए कि नहीं? देयर आर ऑलवेज, नहीं, पता होने के लिए आदमी का खुद का एफर्ट होना चाहिए, उसमें शिक्षित होना चाहिए, उसे समझ में आनी चाहिए बात। और मेरा यह मानना है कि कोई भी कानून जिस व्यक्ति को पे असर डालता है वो उसे बहुत जल्दी समझ लेता है। ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में रहता है। ये जो आपने जिक्र किया कि किसान एजिटेट कर रहे हैं, ये एजिटेट तभी तो कर रहे हैं जब इनको कुछ इस एक्ट में समझ में आया होगा और उन्हें लगा होगा कि ये शायद हमारे हित में नहीं है। तो ये जो काम है, ये एक्टिविस्ट जो हैं या जो कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फार्मर्स एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, तो वो हैं जो वैनगार्ड में जो आगे खड़े होते हैं, जो उसका लीगल पहलू है उसको समझते हैं, और उसके बाद जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उस तक वो उसको लेके जाते हैं। चाहे आप जैसे किसान यूनियन की बात करें, तो ऑब्वियसली किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं या जो लोग जानकार हैं, वो इन इश्यूज को ले जा रहे हैं फार्मर्स तक। और लीगल लिटरेसी, मैं जो आपने जो कहा, मैं उसका सिर्फ लिमिटेड सा जवाब दे रहा हूं कि बहुत अच्छा हो यदि आदमी को अपने सारे अधिकार पता हो। लेकिन यदि आप मुझसे भी पूछें कि क्या मुझे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, मुझे नहीं पता। वो तो जब कोई इशू आता है तब आदमी उसको रेफर करके देख के समझने की कोशिश करता है। अदरवाइज कानून का ज्ञाता तो आप लोग जो लीगल फील्ड में हैं या लीगल फील्ड में आने की राह में चले हैं, तो अगर सबको लीगल क्लैरिटी हो जाए तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी फिर। नहीं सर, हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेन और जो है और कुछ और चीजों में यूज हो, और लीगल लिटरेसी सबके पास हो। हम तो ये चाहते हैं, पूरी हमारी सोसाइटी का यही है कि हर व्यक्ति एम्पावर्ड हो। और इसके लिए इन ऑर्डिनेंसेस के लिए ब्रजेंद्र सर, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा अर्जुन जी कि हमने एक स्पेशल कमिटी बनाई है, who's going to study the ordinances and we will also suggest some changes to the ministry so that we play a positive role. अब सर अंत में हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो अब हम इसके समापन की ओर बढ़ते हैं। मैं 2-2 मिनट में हमारे जो दोनों मेन गेस्ट हैं, तीनों मेन गेस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, अब सोल्यूशंस पे बात करते हैं। तो लास्ट में 2 मिनट सोल्यूशन पे हम बात करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड। So we will start with Brajendra sir and we will end with Arjun sir, if that is fine with you all. Okay, I'll make a very short point. In spite of the positive result which the agriculture sector has shown even in times of this pandemic, let us not close our eyes to the fact that agriculture as a whole is in a state of crisis. It requires urgent attention, and it requires measures which can help the farming community and the agrarian sector as a whole to develop. So far, all our effort has been, I would say, limited to the procurement, the production, first of all, production and productivity. Thereafter, its procurement and its storage, so that the public distribution system and the food security can be
taken into consideration. But if the farmer has to benefit out of it, you need something else. MSP is only to ensure that his surplus fetches him a certain money with which he can lead his normal life. But in the present aspirational times, the youth is getting attracted to things which have nothing to do with agriculture. And I think it's a very positive feeling to want to get out of your comfort zone and do something else in the world. So both the things are there. There is an agrarian crisis which has to be met. These ordinances seek to deal with it in the sense that they want to free up the agrarian market, bring in the investors, bring in the private players, and the farmer, giving him the flexibility and the freedom to sell to whomsoever he wishes to enter into a contract with whosoever he wishes to, and to negotiate a price which he feels is fair and just. And on the other hand, maybe this will help free the farmers' children to look at other opportunities which are there in the world. Yes, it's a time of crisis. Economy will take time to get on its feet again. But as they say, every adversity presents an opportunity. Those who are smart enough, hardworking enough, they grab it. Rest, रोना रोते रहते हैं. जी, थैंक यू सर. अब मैं राजबीर सर से अनुरोध करूंगा सर, 2 मिनट में अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की क्या सॉल्यूशन है. राजबीर सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप बोल सकते हैं. राजबीर सर. थैंक यू वेदांश. सबसे हम जो ये ऑर्डिनेंसेस आए हैं, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें और ये सोच सकते हैं कि किसानों की इनकम बढ़ेगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, उनके लिए जो उनके साथ चीप रेट्स में उनकी जो फसलें की जाती थी उससे उनका छुटकारा मिलेगा, जो किसी भी प्रकार की चीटिंग उनके साथ होती थी उससे उनको छुटकारा मिलेगा. और ये सारी चीजें किसानों की इनकम में वृद्धि करेगी. और जो हमारा सिस्टम है, जो सोच है C2 + 50%, हम उसकी उम्मीद कर सकते हैं. और अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अभी पार्लियामेंट में भी जाएगा और बहुत सारी जगह पे इसको डिसाइड होना है, तो उसमें चेक एंड बैलेंस के साथ हम इसको करेक्ट. जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजबीर जी. आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जो स्वामीनाथन कमेटी में कहा गया था. जी, स्वामीनाथन कमेटी में कहा गया था कि एमएसपी होगी C2 + 50%. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब मैं अश्विनी से अनुरोध करूंगा. अश्विनी जो कि इस पूरे कार्यक्रम के एक तरीके से मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं. ये पूरा कार्यक्रम जो है उनकी एक परिकल्पना और उनकी बहुत ही पॉजिटिव इंटरवेंशन के कारण हो रहा है. तो अश्विनी, अगर आप हमारे साथ हैं तो अश्विनी आप अपनी बात कंक्लूड करें. अश्विनी. मैं अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमने बहुत सारे अनछुए पहलुओं को इसके माध्यम से छुआ और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमने एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाया. मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. अर्जुन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. राजबीर मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही हमें डायरेक्शन देते रहें, ऐसे ही आते रहें, हमें समझाते रहें और एक हम फार्मर्स के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच के साथ आगे बढ़ सकें. थैंक यू वेदांश. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच अश्विनी. अब मैं सृष्टि से लास्ट में हम अर्जुन जी से बात करेंगे. 2 मिनट लास्ट में अर्जुन जी के होंगे. उससे पहले मैं सृष्टि, आई वुड रिक्वेस्ट यू सृष्टि टू शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस होल इशू briefly under 2 minutes. Srishti, if you are listening to us, are you there Srishti? I guess we have lost the connection with Srishti. तो अब मैं अर्जुन जी से अंत में अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए, हमने स्टार्ट ब्रिजेंद्र जी के साथ किया, अब हम अंत करेंगे अर्जुन जी के साथ. अर्जुन जी, लास्ट के 2 मिनट, क्या हमारी दिशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए? What is the way forward, Arjun ji, if you can listen to us? Arjun ji?
अर्जुन जी आप बोलिए, लास्ट 2 मिनट्स, आप 2 मिनट में आप कुछ हमको बता पाए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही अर्जुन जी। हेलो, अब आ रही है? जी जी, आप ऑडिबल हैं सर। अंत हाँ में जी। सर हम आपसे आपके साथ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आपके 2 मिनट में। सॉल्यूशन सर, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए यूनिक डायलॉग। एंड जब डायलॉग की बात करता हूँ कि सबसे बात करो। हर स्टेट अलग है, हर जगह के फार्मर्स अलग है, हर जगह फार्मर्स को अलग दिक्कतें हैं। इंडिया एक यूनिफॉर्म देश नहीं है। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत वैरायटी है। सबसे पहला और सबसे मेन जो है वो डायलॉग है। जनरली बात करते हैं कि पार्लियामेंट में डायलॉग होगा, पार्लियामेंट में बात होगी। देखिए, बुरा ना माने लेकिन पार्लियामेंटेरियंस गांव-गांव तक नहीं जाते मोस्टली, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है, पार्लियामेंट का होता है, और भी काम इतने आ जाते हैं कि वो हर घर तक नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपको डायलॉग चाहिए, और उस डायलॉग को बनाने का एक जरिया भी ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि डायलॉग का जरिया क्या है, तो देयर इज नो परफेक्ट वे। हम सब मिलके काम करेंगे तब हमें एक डायलॉग का जरिया भी मिलता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर जेन्युइनली इंडिया में फार्मिंग को आप अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो दुनिया भर में आजकल देश इतने लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। मेरे जितने भी साथी सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप वर्टिकल फार्मिंग के बारे में पढ़िए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में पढ़िए, एरोपोनिक फार्मिंग के बारे में पढ़िए। देयर आर वेज, ऐसे तरीके हैं जिससे फार्मिंग से बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छी एक इकोनॉमिकल वायबिलिटी बन सकती है, पर एट द सेम टाइम आप कॉस्ट भी कट कर रहे हो। आपका इकोनॉमिक आपका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो भी घटेगा, पानी भी बचेगा। तरीके बहुत हैं। साइंस ने इतनी तरक्की करी है इस फील्ड के अंदर। बात वहीं पर ही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप एक बार इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में, ऐसे शहर हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपना ग्रीन कवर पूरा कर लिया है सिर्फ अपने रूफटॉप्स पे क्या कहते हैं, गार्डन्स लगा के। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप अगर कानूनी दिशा में देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो साइंटिफिक दिशा में भी आगे लेके जाए, ताकि उन दोनों जरियों से हम इकट्ठे बढ़ पाए। सिर्फ कानून हमें नहीं चाहिए, हमें साथ साथ वो तरक्की के जरिए भी चाहिए, हमें साथ साथ वो मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका। और आज बहुत ही फ्रूटफुल सेशन हमारा रहा। मैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी की तरफ से हमारे जितने भी आज के दर्शक थे, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे जो जितने भी स्पीकर थे, जिन्होंने टीवी डिबेट्स के से बहुत दूर होके इतने विस्तार से हमारे साथ फार्मर्स के लिए बातें करी, मैं ब्रजेंद्र जी, अर्जुन जी, नृपेंद्र जी, राजवीर जी, अश्विनी, सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम एक पॉजिटिव इंटरवेंशन प्ले करें और हम जरूर इसे आगे लेके जाएं। तो इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। और आज हमारे नेशनल सिंपोजियम ऑन एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंसेस का फॉर्मली मैं समापन होने की घोषणा करता हूं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे, हम किसानों के साथ जुड़े रहेंगे, and we will play a very important positive role in intervention, and we will intervene in the interest of the farmers. So thank you so much. आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, आप लोगों की टेस्ट भी थैंक यू टू ऑल। जी, आप लोगों की जी आप लोगों की टेस्ट है। टेस्ट के बारे में आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, and we will also offer you internships regarding the same, regarding the farming ordinances. So thank you one and all. Thank you everyone. We will see you soon. Thank you. Goodbye. See you. Bye. थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। एंड विजेंद्र सर, नमस्कार सर। और मैं उनको भी नमस्कार करके बाकी सभी साथियों को, सबको, नरपिंदर जी को भी नमस्कार। जी एंड नमस्कार। अश्विनी जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने मेरे को ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मेरी बात रखने के लिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी। एंड सभी ऑर्गेनाइजर्स का सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आपने भी अपने कीमती समय से समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद।